चल रेत पर अपना नाम हम लिखें और ओढ़ कर लहरों की ये चादरें भीग जाए हम और फिर लेट कर हाँ उस आसमां तले हम बेवजह बातें चांद से करें और ये वक्त जाए दम है दिल ने फिर कहा तू रहना यहीं तू रहना यहीं तू रहना यहीं तू रहना यहीं Great, Arjun, and we should have a big round of applause. Thank you so much. This is the festival feel that we wanted, and welcome back to this auditorium of Udaipur Architecture Festival 2020. We are in the last phase of our festival. We have had a fantastic festival till now. Up tak we have had lots of knowledge sharing sessions from technical, from BIM to artificial intelligence to architecture to mud to hi-fi architecture. Everything was covered and we have had a fantastic time. It's time to do some masti here. Let's have some festival feel, and that's why we have an interesting panel here today, and we have performers rather. Forget the panel now, no longer panels. Okay, so we have fantastic performers here who are going to chedify your dil ke taar and give you a lighter feel. कि इतना सब हमने अभी किया है 3 दिन 2 दिन में बहुत सारा नॉलेज दिया है तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाया जाए. सो वी हैव लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय गैंग ऑफ entertainers, I would say. And trust me, everybody is an architect. Okay, so the way we had an architect yesterday as airport director, so we have these architects who are performers here, and they are just top class performers and young ones, very full of passion and all. Okay, so let me introduce the first one, the voice you are listening to, magical voice. Okay, मुझे इतना सब आता नहीं, I am not a professional anchor. Okay, so हमारे performers please माफ करना, मुझे लच्छेदार भाषा नहीं आएगी. So we had this magical voice with Arjun. Arjun, can we have tring एक जोरदार से? Okay, so Arjun is going to sing, and then we have Gaurav is going to, architect Gaurav, sorry, I should be saying architect every time. So architect Gaurav, who is going to narrate some stories in forms of poems, or okay, and interesting ones. Okay, and then we have Girish Vishwanath, who is going to be an extended version of Livardist. Okay, he is going to do some mimicry or comedy of our and deriving comedy out of our profession or lives. Okay, so we have these 3 flavors in this session and they are going to stay there. You need not go. Okay, तीनों जाना नहीं last तक भी. Okay, you have to be there. That is my request. Okay, I am not ordering you. That is my request. I requested for a shorter time, but I feel you should stay there for long. Okay, so can we hear something more, Arjun? Just 1 second about your life, and then you sing a song for all of us. Yeah, sure, absolutely. Am I audible? सब आवाज आ रही है ना? Okay. So my name is Arjun Singh, and I actually am an architect turned singer songwriter. So मैं basically अपने खुद के गाने लिखता हूँ, खुद के गाने compose करता हूँ और उन्हें गाता हूँ. And I think a lot of things I learned from architecture. क्योंकि ये गाने भी एक तरीके के एक डिजाइन है. So I make songs, and most of the songs are based on my experiences, जो भी मैं experience करता हूँ. So I think 7 odd years I practiced architecture. I'm still doing it a little bit, but now I just released my debut album, which was by the name of Musafir. So if you haven't heard it, please go and hear it. And that's a little about me, and yeah. Let's have a song then.
Yeah, all right, sir. Okay. So yeah, so this song is called Tere Liye, and it's a very simple romantic song, and देखो सुनो आपको शायद मजा आएगा. Lyrics पे ध्यान दीजिएगा. Okay. तेरे लिए अपने दिल को मैं रख दूं तेरे कदमों पे, तू जो कर दे इशारा, कह दे जो तू एक बारी तो दे दूंगा जान. सारे जमाने की रस्में भुला के मैं ले जाऊंगा तुझको सबसे छुपा के, कह दे तू आ एक बार मेहरबान. ये बादलों से की दुआ के बारिशें वो करे वहाँ जहाँ जहाँ कदम तू रखे, भीग जाए तू भी प्यार में मेरे, कि बूंद बूंद में छुपा है मेरे प्यार का नशा. हाँ 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 हे ना 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 ना. तेरे लिए अपने दिल को मैं रख दूं तेरे कदमों पे, तू जो कर दे इशारा, कह दे जो तू एक बारी तो दे दूंगा जान. सारे जमाने की रस्में भुला के मैं ले जाऊंगा तुझको सबसे छुपा, जो कह दे तू आ एक बार मेहरबान. ये बादलों से की दुआ के बारिशें वो करे वहाँ जहाँ जहाँ कदम तू रखे, भीग जाए तू भी प्यार में मेरे, कि बूंद बूंद में छुपा मेरे प्यार का नशा. हाँ 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 हे हाँ हाँ. हाँ ये जमीन आसमां तेरी बात करते थकते ही नहीं. चांद से कहा है उन्होंने जाके देख ले, कि तुझसे भी हसीन कोई है कहीं. हाँ ये जमीन आसमां तेरी बात करते थकते ही नहीं. चांद से कहा है जाके देख ले, कि तुझसे भी हसीन कोई है कहीं. चांद ने तारों से पूछा यही क्या है ऐसा भी कोई कहीं, वो बोले चेहरे के सामने फीकी है चांद तेरी चांदनी. चांद ने तारों से फिर से ये पूछा क्या ऐसा है कोई कहीं, वो बोले चेहरे के सामने फीकी है चांद तेरी चांदनी. और मैंने फिर कहा ये चांद से कि तेरी चांदनी है बस रात के लिए, मगर वो सूरत की है जो रोशनी, न है किसी से कम न होगी कम कभी. डर मुझे न शर्म आ जाए इसको देख के सुबह भी कहीं. ना 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 हे ना 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 हे Just too good, Arjun. Thank you so much. Thank you. We'll give you a small break, okay? Yeah, and sure. we have Gaurav Lamba. Introduce and you can just go head on. Start. Hello, sir. I'm Gaurav Lamba, and I'm practicing mud architecture currently, and poetry is somewhat something which I've always related to, because हमारा जो फील्ड है आर्किटेक्चर, उसमें मुझे लगता है कि when we look at the soul of it, it's always something poetic. It has something poetic related to it, and हमारा कुछ भी the part which we call the concept of it is something which
has to be very emotional. Every aspect of it is very poetic. So I would like to start off because मेरी जो poetries हैं they are derived from the normal everyday life. जैसे जो पहली पोइट्री मैं आपको सुनाना चाहूंगा उसमें है कि मैं जिस रास्ते से रोज अपने ऑफिस जाया करता था उस रास्ते में एक मस्जिद पड़ा करती थी. उस मस्जिद के बाहर एक बूढ़े बाबा बैठे रहते थे जिन्हें मैं हर जुम्मा यानी फ्राइडे के रोज उन्हें वहां पे बैठा हुआ देखता था और बाकी दिन मुझे वो वहां पे दिखाई नहीं देते थे. तो एक बार मैं घूमते फिरते एक मंदिर के बाहर से गुजर रहा था तो मेरे को वो वहां पे बैठे हुए दिखाई दे गए. तो मैंने 2 मिनट उनसे बैठ के बात की, उनसे उनका नाम पूछा. अल्ताफ उनका नाम था. तो जब मैंने अल्ताफ जी से बात की तो उन्होंने कुछ ऐसा बताया कि जिनको मैंने अभी शब्दों में पिरोने की कोशिश की है. तो इस पोइट्री का नाम है जुम्मे का नमाजी, यानी जो जुम्मे के रोज नमाज अदा करता है. एक रात दबा के सीने में मैं मंदिर मस्जिद जाता हूँ. मैं जुम्मे का नमाजी हूँ, हर जुम्मे मस्जिद जाता हूँ. वो शायद उस दिन बंदों को कोई दूरबीन से तकता है. धोआने की इस टोपी में हर बंदा रिश्वत रखता है. जैसे मैं ना और ही कुछ और मियाँ ये बंदा और ही कुछ. जैसे मैं ना और ही कुछ और मियाँ ये बंदा और ही कुछ. शायद कुरान ने कहा हुजुम में खुदा खुदा ना और ही कुछ. पर जुम्मा भी तो हफ्ते में बस एक बार ही आता है. बाकी दिन मुआ पेट मुझे कुछ दर दर लेकर जाता है. मंदिर ने दिन है बांट रखे, मंदिर ने दिन है बांट रखे. बंदे खुद खुद में छांट रखे. कोई इस दर लेटा आता है, कोई उस दर रोता जाता है. देते कम है मांगे ज्यादा, देते कम है मांगे ज्यादा. कुछ मोल भाव आधा आधा. चढ़ते सूरज को जाने क्यों, चींटी कीड़ों को जाने क्यों. ये बूढ़ी आंखें तकती हैं, ये गला प्यास से सूख गया. ये बूढ़ी आंखें तकती हैं, ये गला प्यास से सूख गया. और दूध पत्थर से नाली में फिर मिट्टी पाकर सूख गया. कुछ दिन तो बेहद देता है पर तू कुछ दिन भूखा रखता है. कुछ दिन तू बेहद देता है पर तू कुछ दिन भूखा रखता है. बस एक शिकन है माथे पर, तू रोज क्यों नहीं तकता है. पर सोचा ही होगा तूने. अब क्योंकि वो उससे रोज भगवान से रोज मिल रहे हैं अल्ताफ जी, तो वो उसकी मन की दशा भी समझ रहे हैं कि पर सोचा ही होगा तूने, हर रोज लगे जो तू तकने. तू रो देगा मैं जानता हूं, अब इतना तो पहचानता हूं. और फिर ये बंदे जाने कब एक खौफ तेरा भी छोड़ चले. है भूख मेरी तो भूल चुके, भूखा तुझको भी छोड़ चले. फिर तू किस दर जा मांगेगा, तू क्या टोपी फैलाएगा. फिर तू किस दर जा मांगेगा, तू क्या टोपी फैलाएगा. तू रहने दे सब ऐसे ही, कल जुम्मा वापस आएगा. तो ये थोड़ा लो ले गया मैं. तो अब मैं आपको थोड़ा प्यार की इश्क, जो पोइट्री का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे हर शायर लिखता है, तो मैं भी उस तरफ आपको लेके चलता हूँ. इससे पहले एक छोटा शेर की राबता इश्क, यानी जो इश्क का रिश्ता होता है. राबता इश्क कुछ बचा के कीजिए, राबता इश्क कुछ बचा के कीजिए. फिर जिससे भी कीजिए दिल लगा के कीजिए. आधा इश्क आधा चांद आधी हसरत, ये चुपते बहुत है. आधा इश्क आधा चांद आधी हसरत, ये चुपते बहुत है. जिंदगी को बेबस सब लुटा के कीजिए. क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया. तो इस पोइट्री का नाम है इंतजार. हम जैसे कहते हैं कि हमारा इश्क जो है वो मुकम्मल हो चुका है, यानी जब 2 लवर्स एक दूसरे को पा लेते हैं वो उसको मुकम्मल इश्क मान लेते हैं. जबकि मेरे हिसाब से वो हर पल
जो एक दूसरे के बिना गुजर रहा है वो मुकम्मल नहीं है। तो उसमें मैंने लिखा है कि एक आखिरी उम्र के आखिरी हिस्से में एक औरत जिसने अपने माशूक को कभी पा लिया था पर अब वो उसके साथ नहीं है, तो वो उसे याद कर रही है और इंतजार कर रही है उसे एक हो जाने के लिए। तो उस पे मैंने लिखा था, इसका नाम है इंतजार। थक कर खुद से ही मैंने संदूक से कागज जोड़े थे, धूल खा रहे थे शब्द कभी जिसने मन भी मोहे थे। सफेद कागज के हाशिए पर तुम्हारे आखिर हंसते हैं, स्याही के बोझ से दबे हुए हैं फिर भी अल्फाज बरसते हैं। कांप रही थी मैं उस दिन, शाम थी जब बरसात हुई, लगा था पल भर गुजरा है जाने कब की रात हुई। शीशे सी ओजस आंखों में बोझिल थी जब वो नींद कभी, कांधे का तकिया कर तेरे अलहड़ ख्वाबों के साथ जगी। भीगी पलकों से जब तेरे मैं शब्दों से बतियाती हूँ, कहती हूँ रोकर उनसे कुछ फिर उनकी सुनती जाती हूँ। अब लगता है अरसे पहले के शब्दों को मैं माफ करूं, अब लगता है अरसे पहले के शब्दों को मैं माफ करूं, रंगरेज मेरे इन रंग तेरों को धुलूं धुलूं मैं साफ करूं। ये पीड़ सही ना जाती है, ये चुभन बड़ी ही खाती है। ये पीड़ सही ना जाती है, ये चुभन बड़ी ही खाती है। जीऊं मैं तो भी कब तक, ये मौत मुई ना आती। ये मौत मुई जो आ जाए, मोहे तुझसे मिला जाए। ये मौत मुई जो आ जाए, मोहे तुझसे मिला जाए। एक टीस मेरी ना निकलेगी, तू बाहों में जो आ जाए। फिर से तेरी बाहों में मैं रोऊंगी इठलाऊंगी, और फिर से तब मैं एक पल को कांधे रख सर सो जाऊंगी। Just too good. Thank you very much. मेरे पास तो शब्द भी नहीं है। जिस लेवल पे you have explained everything and you have narrated, I don't know how to spell it out. वो एक बार वापस सुनना चाहूंगा। आधा इश्क आधा आधा कुछ था वो जो चुभता बहुत है। राब्ता इश्क कुछ बचा के कीजिए, फिर जिससे भी कीजिए दिल लगा के कीजिए। राब्ता इश्क कुछ बचा के कीजिए, फिर जिससे भी कीजिए दिल लगा के कीजिए। आधा इश्क आधा चांद आधी हसरत, ये चुभते बहुत है। जिंदगी को बेबस सब लुटा के कीजिए। Thank you very much, Arjun. How would you explain this, Arjun? Oh, this is actually मतलब it's too much to comprehend। मतलब बहुत ही बढ़िया। मतलब ये बहुत एक बीच में एक लाइन आई थी कि मैं फिर से गौरव आपने बोला था कि मैं मौत भी आएगी तो मैं मतलब उसके बाद जाके मिलूंगी। फिर से तेरी बाहों में मैं रोऊंगी इठलाऊंगी। बिल्कुल और फिर से तब मैं एक पल को कांधे रख सर सो जाऊंगी। हाँ, ये मतलब बहुत ही प्यारी लाइन है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी एक्चुअली। इसलिए क्योंकि मतलब मैं अभी जो गाना परफॉर्म करने वाला था अगला, वो ना कुछ ऐसा ही है, वो थोड़ा सा इमोशनल है और वो इससे मिलता जुलता है। एक्चुअली वो इस इमोशन पे है कि जब आप किसी को खो देते हो, तो वो थोड़ा सा इसी मौसम को, इसी इमोशन को थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ। इस गाने का नाम है तारा। और अगर आपको याद हो तो बचपन में हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो हमको एक बहुत प्यारी सी बात कहते थे कि यार कोई मतलब यू डोंट लूज एनीवन, कोई गुजरता नहीं है, वो ऊपर जाके तारा बन जाता है। तो ये उसी थॉट पे है कि बंदा कह रहा है कि यस आई हैव लॉस्ट समवन बट आई एम ओके, मतलब मैं कंटेंट हूँ बिकॉज अब मैं रात को उस तारे से बात करूंगा, मेरे को कोई गम नहीं। तो ये उस थॉट पे है। ऑलराइट, गौर से सुनिएगा, थोड़ा इमोशनल है बट इट्स तेरे जाने का गम तो है जिद को, पर ना है कोई फिक्र, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम न यूं जाओगे बातें अधूरी छोड़कर।
अब खामोशियों से मैं करता हूँ बातें, और अब सवेरों से लगे प्यारी ये रातें, क्योंकि बन के एक तारा तुम जब आते हो मेरे आसमानों में, अब करते इशारों में बातें सभी, तो दिल को लगता यही कि तुम हो यही, कि तुम हो यही। यादें तुम्हारी सब भूल बना करके रख ली है पन्नों में कहीं, भूले से फिर जब मैं खोलूंगा किताबें तो महकेगा तू हर कहीं। अब खामोशियों से मैं करता हूँ बातें, और अब सवेरों से लगे प्यारी ये रातें, क्योंकि बन के एक तारा तुम जब आते हो मेरे आसमानों में, अब करते इशारों में बातें सभी, तो दिल को लगता यही, कभी टिमटिमा के हंसना तेरा, कभी रूठ के टूट जाना तेरा, वो शर्मा के छुपना तेरा बादलों में, तो क्यों ना सवेरों से लगे प्यारी ये रातें, हाँ बन के एक तारा तुम जब आते हो मेरे आसमानों में, आप करते इशारों में बातें सभी, तो दिल को लगता यही कि तुम हो यही, कि तुम हो यही। वाह अर्जुन, वाह 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 वाह। थैंक यू सो मच। थोड़ा So we सा have one more special architect here. हाँ अर्जुन, you want to say something? मैंने कहा सॉरी फॉर जस्ट मेकिंग द एटमॉस्फेयर अ लिटिल इमोशनल, मैंने कहा साथ ही साथ पोइट के साथ ये भी कर देते हैं। थोड़ा रंग बदलते हैं। बहुत बहुत औसम था। अरे एक आपकी इसमें एक लाइन थी जिससे मेरे को कुछ मेरा लिखा हुआ एक पुराना याद आ गया, एक टू लाइनर ही है सर, देन आई अरे नहीं प्लीज प्लीज प्लीज। इसमें जो आपने कागज की बात की थी कि पन्नों को पलटूंगा, जी तो जी जी। उसपे मैंने लिखा था कि कागज भर स्याह लगाया था कुछ आखर मैंने जो है थे, कागज भर स्याह लगाया था कुछ आखर मैंने जो है थे, और आंखें तेरी देखी फिर बेजार हुए बेकार। अरे क्या बात है, बहुत ही ओके। सो शुड वी sir. चेक फ्लेवर थोड़ा Yes. सा? ये चौथा आदमी है ना, हंस रहा है, खाली कर क्या रहा है मुझे जानना है, करता क्या है जानना है। तो भैया मेरे कुछ बोलेगा? सर क्या बोले, ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। Sorry, I need to introduce you in a proper way. May we welcome architect. बोलना, आगे बोलना। नहीं इतना बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए। So hello everyone, my name is Girish. I'm an architect and अब सर में नाम के नीचे पोस्टर पे लिख ही दिया था, तो yes, I am also a stand-up comedian and गौरव ने जो अभी 2-4 लाइनें बोली तो मुझे उससे कुछ ऐसा एक किस्सा याद आया कि मतलब जस्ट यू नो सॉरी लाइक थोड़ा रेंडिशन ऑफ योर शायरी कि आधी फीस और आधे प्रोजेक्ट भी बहुत चुभते हैं।
अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे जख्म कुरेद दिए भाई। बहुत तरीके से कुरेदे हैं। Too good, यार। सबको यही सबके माशूका सीन तो रहा नहीं यार। Correct. तो अपन एकदम मतलब ये तो बहुत अलग ही फॉर्मेट है। यूजुअली अपन स्टैंड अप करते हैं, 4-5 लोग होते हैं, आप उनकी खिंचाई कर दो एंड देन यू स्टार्ट टॉकिंग। बट अभी यहाँ पे एक स्पॉन्सर है, एक अपने सर है, और बाकी ये दो ऐसे लोग हैं जो आगे जाके वायरल होंगे, तो इनसे तो आप पंगे ले नहीं सकते। नहीं, पूरी मेरी टीम है भैया, पूरी टीम मेरी यहीं पर है, ठीक है। ये यूएफ की पूरी टीम है जो 1000 के बराबर है अभी। अब लोग देख रहे हैं, अब अपन बात कर पाएंगे। तो अभी जैसे जब से लॉकडाउन हुआ है, सब लोग ऐसे परेशान है कि यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते। और मेरे को लगता है कोई अगर कम्युनिटी खुश है इस चीज से तो वो है आर्किटेक्ट्स। मतलब एज एन आर्किटेक्ट मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसी दिन के लिए तो मेरा जन्म हुआ था कि मेरे को कोविड का काल देखना था। मतलब इस पूरे लॉकडाउन में तो मैंने धूम मचा दी। मतलब साइट पे नहीं गए, फ्री में सैलरी आ रही है और घर पे चिल कर रहे हैं, कभी भी कुछ भी कर रहे हैं। अरे यहाँ तक कि मैंने तो लॉकडाउन में शादी कर ली। बहुत बढ़िया। तो मतलब कि बहुत ऐसा आर्किटेक्ट्स के लिए स्पेशली आई थिंक लॉकडाउन एक बहुत बड़ा बून है। मतलब आपको साइट पे नहीं जाना, क्लाइंट को फोन करके बोल दिया सर ऐसा बिल्डिंग में 1-2 केसेस हैं तो अभी अपन निकल नहीं सकते, शाम तक रिपोर्ट आएगी, तो आज का दिन तो टल गया आपका। और ऐसा बोल दो सिम्टम्स हैं और आप क्लाइंट से पेमेंट मांगो वो ना दे, तो उसके घर से निकलते निकलते आप रात को फिर 1-2 बजे फोन कर दो, सर आपके घर से आने के बाद ना मेरे को थ्रोट में थोड़ी इरिटेशन है। करा दूंगा। मतलब कोविड में मेरे को लगता है कि लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन है, आपको जो भी करने का है करो। मतलब ये तो एकदम ऐसा बून है अपने लिए। थोड़ा थोड़ा अपना मतलब ऐसा इनके जैसे इतना ज्यादा डीप थॉट प्रोसेस है नहीं अपना, तो मेरे को थोड़ा ऐसा शर्मिंदगी भी है। बट क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये अभी की प्रॉब्लम है या इट्स अ न्यू सिनेरियो या एनीथिंग। सुनील सर अपने राइट हैंड मैन को बुला रहे हैं। लेफ्ट बुला रहा हूँ, लेफ्ट वाले को। सॉरी। लेफ्ट इज ऑलवेज राइट, यू सी, लेफ्ट इज ऑलवेज राइट। So hi Piyu ma'am. Hi, hello. So I grew up in Delhi. Okay, I am a single child. Okay, so and we are basically from down south. तो क्या है कि मेरे parents although ऐसे 30 years से they have been in Delhi, but उनको क्या है कभी मतलब they never were able to cope up with the seasons there. मतलब जैसे गर्मी आते ही क्या होता था, मेरी मम्मी मतलब मेरे को क्या है ऐसे वो नाइसल पाउडर से पूरा ऐसे नहला के भेज देती थी। एक बार मेरे को याद है कि मतलब ऐसे एक बच्चे ने मेरे को ऐसे थप्पी मारी और ऐसे फुफ करके और मतलब लोगों ने ऐसे रूमर फैला के मेरे बारे में कि नहा के नहीं आते, इस पे धूल जमी हुई है। और विंटर्स में तो क्या है कि एक बार मेरी मम्मी को ना घर के सारे कपड़े पहना के भेज देती थी, यू नो। तो फिर मतलब एक बार मैं फैंसी ड्रेस में फर्स्ट आया, टीचर को लगा कि मैं कपड़ों का ढेर बन के आया हूँ। बट यू नो ग्रोइंग अप एज अ साउथ इंडियन चाइल्ड इन दिल्ली, वो इट वाज वेरी टफ फॉर मी। आप पे बहुत प्रेशर होता है, लोगों को लगता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप पढ़ाई में अच्छे हो, और अपना वो कोई सीन था ही नहीं। और अब क्या है कि हम लोगों की ऐसा वी ग्रू अप इन अ गवर्नमेंट सोसाइटी, यू नो, लाइक तो सब लोग एक दूसरे के घर में ताका झाकी कर रहे हैं, ये वो, तो सब बच्चे पढ़ रहे होते थे और अपन तो मतलब अंधेरा हुआ नहीं कि अपन सो गए। तो क्या है एक दिन मैं सो रहा था और मेरी मम्मी आई और उन्होंने ऐसा रूम की लाइट ऑन कर दी। मम्मी क्या कर रहे हो? मैं सो रहा हूँ। चुपचाप सो जा, कॉलोनी वालों को लगना चाहिए तू रात में जाके पढ़ाई करता है। तो उस दिन मेरे को ऐसा लगा कि मतलब मैं अडॉप्टेड और समथिंग। तो इसीलिए आर्किटेक्ट तो नहीं बन गया? सर उसकी भी बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत ड्रामेटिक स्टोरी है आर्किटेक्चर में आने की।
तो ऐसे कैसे करके अपन पहुंच गए। अब आर्किटेक्ट मतलब 12th का रिजल्ट आ गया, अपना फोन नंबर जैसा तो रैंकिंग आई थी, तो उसके बाद में ज्यादा ऑप्शन थे नहीं, तो घर में ऐसे मातम का माहौल, बच्चा जाएगा कहाँ। तो एक दिन मेरी मम्मी पूजा के फूल लेके आई और उसमें हमारे कॉलेज की एड थी। That's why ये भगवान का साइन है, तू इसी कॉलेज में जाएगा। अच्छा, अब मेरे घर में मेरे कजिन्स वगैरह आर्किटेक्ट्स हैं, तो अब क्या मेरे पापा भी मतलब ऐसा, वो कहते हैं ना कि बड़ों के कुकर्मों की सजाई आपको मिलती है, तो मेरे साथ भी वही हुआ। अब मेरे कजिन्स वगैरह जो बेचारे आर्किटेक्ट्स थे वो घर आते थे, तो मेरे पापा, अब मुझे मतलब समझ आता है उन बेचारों पे क्या बीतती होगी। मेरे पापा वो उसी टाइप के थे कि एक पेपर लेके आते थे, बोलते बेटा ये साइट है, अब तुम इसको डिजाइन करो, और वो बेचारे घर पे बैठ के डिजाइन कर रहे हैं। तो अब मैं भी वही कर रहा हूँ, और अब मैं कहता हूँ कि क्लाइंट बिना काम मतलब बिना पैसों के काम कराए जा रहे हैं। तो बट इवन आर्किटेक्चर कॉलेज सर वैसे बहुत इंटरेस्टिंग होता है अपन लोगों के लिए। अगर अपन जैसे देखें जो पूरी जर्नी थी, मेरे को एक बार याद है हम लोग ऐसा हॉस्टल में काम कर रहे थे, और सडनली ऐसे मेरे फ्रेंड के अंकल बिना कुछ बताए सीधा हॉस्टल में आ गए। अब वो आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से थे नहीं, वो शायद मेडिकल से थे या जो भी थे, तो हम लोग क्या टोपो मार रहे थे कि, तो वो आए, उन्होंने कमरे में झांका, बस 5-6 लड़के बेचारे ऐसे लाइट वाइट लगा के टेबल के नीचे से बल्ब के ऊपर कुछ बनाए जा रहे हैं एंड लाइक तो फिर वो बोले कि यार हमें तो लगता था कि तू कुछ काम वाम नहीं करता, और यहाँ पे आके देखा तो बहुत ऐसा महीन काम कर रहा है यार, रात को ऐसे लाइटें वाइटें चला के, और ऑल ऑफ दीज थिंग्स। मतलब हम लोग को याद है लाइक इवन हॉस्टल में जैसे रोजे वगैरह का जो टाइम होता था, तो हम लोग मेस से के दही लेके आते थे और ट्रायंगुलर स्केल से लस्सी बनाते थे। यार मेरे को एक प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। आई हैव अ प्रॉब्लम हियर। कल प्रीति अग्रवाल मैडम और रुचिरा ने बहुत तारीफ किया था तुम्हारा, कि तो सब उल्टा है, तुमने गलत फूल फेंकी। वो पाउडर जो उड़ा ना, माँ ने जो पाउडर लगाया वो शायद उनकी आंखों में उड़ा है, वो तो ऐसा लग रहा है। बहुत तारीफ किया उन्होंने, प्रीति अग्रवाल मैडम ने और रुचिरा ने। तो पता ही नहीं है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। यार अर्जुन कुछ सुना दे यार इस बात पे। बिल्कुल सर। इनफैक्ट आर्किटेक्चर की बात हो रही है, तो मैंने एक्चुअली सबने आपने गेरुआ गाना सुना? सुनो, आपको मजा आएगा। मतलब पूरा आर्किटेक्चर की जो स्टोरी है ना, मेरे हिसाब से। अरे धूप साउथ में रखना और बिल्डिंग ओरिएंटेड रखना, बढ़िया सी सर्कुलेशन, चलो प्लान हाँ बन गया, और पेड़ कुछ मैं लगा दूं, एक बफर जोन सा बना दूं, और एक वाटर बॉडी जो ठंडी करे। ओ धूप साउथ में रखना, बिल्डिंग ओरिएंटेड रखना, बढ़िया सी सर्कुलेशन, चलो प्लान हाँ बन गया, पेड़ कुछ मैं लगा दूं, एक बफर जोन सा बना दूं, और एक वाटर बॉडी जो ठंडी कर दे हवा। जूरी में मेरा सेक्शन ना मॉडल, टीचर ने डांट के ये कहा, रंग दी क्यों बिल्डिंग गेरुआ, था 2 बजे का आइडिया, रंग दूं मैं बिल्डिंग गेरुआ। तो ये थी कुछ थोड़ी बहुत स्टोरी। अब आगे की सुनिए। ड्राइंग्स भी मेरी ट्रेसिंग पर थी,
ऊपर से उन पे फॉर्मेट नहीं, टीचर ने 2 ही मिनट में रीडू दिया, बोला प्लान मेरा फिर देखा और गुस्से में बोला, ड्राफ्टिंग तो सुधारो और लाइन वेट है कहाँ, मुझको लगा मैं फेल हो जाऊंगा, तो झट से फिर मैंने सोचा और कह दिया एकदम, टीचर जी सुन लो कलर ये नहीं है, एक्सपोज्ड ब्रिक का था आइडिया, इसलिए ये बिल्डिंग गेरुआ था 2 बजे का आइडिया, रंग दूं मैं बिल्डिंग गेरुआ। यार थोड़ा माहौल आर्किटेक्चरल गेरुआ। नहीं गौरव, थोड़ा माहौल को चलने दिया जाए कि थोड़ा चेंज किया जाए? अप टू यू। ऐसी आपकी मर्जी सर। अप टू यू। एक्चुअली मेरे पे पहुंच गया तो मैं थोड़ा लो ले जाऊंगा, अभी बहुत प्यारा माहौल चल रहा है, तो लेट्स कंटिन्यू दैट, आई विल कम इन लेटर। नहीं चलेगा ना, अपने दाढ़ी वाला है उठाने को वापस। अच्छा ठीक है, चलिए। दाढ़ी वाले उठा रहे सबको आज के। अरे बाबा सही बोला। ओके, 14 फरवरी 2019 ये डेट लोग वैलेंटाइंस डे के हिसाब से भी याद रखते हैं, बट 14 फरवरी 2019 को इंडिया के पुलवामा अटैक्स हुए थे। ये जब अटैक्स होते हैं और हम ब्लाइंडली किसी एक फेथ को टारगेट करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम टेररिज्म को उससे जोड़ रहे हैं, जबकि अगर मैं खुद को एक मुस्लिम मैन की तरह देखूं, तो मैं उन जो लोग ये करते हैं उनसे क्या कहना चाहूंगा, उसे मैंने लिखा है। इसका नाम है पेशी होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह आज पेशी होगी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आज पेशी होगी। खून भरा था खाड़ी में, जहलमों की क्यारी में, नाम अल्लाह का ले तुम, वीर उसकी जान ले तुम। खुदा को तू रूबरू होगा, गिड़गिड़ा बेआबरू होगा। हम देखेंगे सब सुनेंगे हम, आज पेशी होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आज पेशी होगी। जाबाज काफिरों का जत्था होगा, उनकी धूरी तेरा मत्था होगा। खुदा खुद तुझे हकारत से तोलेगा, बेजां भटके जिहादों के चोले खोलेगा। सियाह जमीर तेरा नग्न हो कांपेगा, वो गुलों की तश्तरी में तुझे नापेगा। मंजरो दियानत तेरी रूहों का हश्र, हाँ हम देखेंगे सब सुनेंगे हम, पेशी होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह आज पेशी होगी, मोहम्मद और रसूलुल्लाह आज पेशी होगी। यार विश्वनाथ कुछ कर यार, वरना पेशी होगी हमारी पेशी। सर आप हर बार ऐसे मतलब खुदू के बाद अगर आप दाढ़ी वालों को बुलाओगे तो माहौल टेंस ही होगा। अरे नहीं, आई वाज थिंकिंग के ये तो ठीक रहा, के मतलब ठीक नहीं रहा। खाली एक यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कोई दाढ़ी वाला खड़ा नहीं था, बाकी सब दाढ़ी वाले ही हैं आजकल। हमारा ही टाइम है। बट जैसे इन्होंने भी बोला, जैसे अर्जुन ने बोला, आरजू ने सॉरी वो क्या है, वो एक साथ ही नाम निकलते हैं। तो आरजू इज अर्जुन वाइफ। लेट मी क्लैरिफाई दैट। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया जोड़ा है आपने।
तो अब जैसे अर्जन और गौरव बोल रहे थे कि आर्किटेक्चर से ही मतलब आपको काफी चीजें सीखने को मिलती हैं। अब मतलब हम लोग का भी ऐसे ही है, इवन स्टैंड अप का भी दुनिया भर का मटेरियल इधर से ही आता है। तो बट मेरा प्राइम सोर्स कंटेंट का मतलब मेरे पेरेंट्स ही हैं, तो थोड़ा उनके बारे में और बताते हैं। तो अभी मेरी मम्मी क्या है, वैसे शी इज वेरी स्वीट, बट उनको थोड़े अलग अलग टाइम पे ना ऐसे ऑब्सेशन हो जाता है। तो बीच में जैसे उनको टपरवेयर का जोश चढ़ गया था, तो हम लोग के घर में क्या है ना, सारे बर्तन टपरवेयर के, मतलब वो इतनी पैशनेट, उनका जज्बा इस लेवल पे था कि उन्होंने मतलब ऐसे बाथरूम में से भी मग हटा के वहां पे भी टपरवेयर के जग रख दिए थे। तो उसके बाद अभी रिसेंटली बाबा वाला फेज आया। तो हमारे घर में क्या है, बिस्किट से लेकर नमकीन तक सब कुछ बाबा का ही आ रहा था। तो और ये बीमारी हमारे आस पड़ोस में भी फैल गई। तो मैंने एक दिन देखा कि मेरे साथ वाले घर की आंटी अपने कुत्ते को बाबा शैम्पू से नहला रही थी, और मतलब नहला के उन्होंने अपने पिल्ले को ना ऐसे भेड़ का बच्चा बना दिया है। तो मैं एक दिन ऐसे आंटी से पूछा, आंटी ये क्या कर रहे हो आप? तो आंटी बोले, बेटा बाबा की तरह इसका भी फर अच्छा हो जाएगा। तो एक दिन मेरी मम्मी वो लेके आई बाबा टूथब्रश। तो मैं उससे ब्रश कर रहा था, तो वो एकदम अजीब से ब्रिसल्स थे। तो मुझे लगा ये देखूंगी पैकेट के पीछे ये है क्या चीज। तो मैंने पैकेट पलटा और पीछे बाबा स्माइल दे रहा था और नीचे लिखा हुआ था विद एक्स्ट्रा फाइबर। क्योंकि दिवाली निकली है, तो आप आई एम होपिंग कि सबकी बहुत अच्छी गई होगी दिवाली। तो बट दिवाली का सबसे वियर्ड पार्ट होता है मिठाई, ठीक है, और उसमें भी एक मिठाई होती है सोन पापड़ी। अब मतलब वो किसका आइडिया है कि मतलब वो मिठाई नहीं है, वो धूल का गोला है। मतलब आप एक से ज्यादा खाओ आपको अस्थमा की बीमारी शायद हो जाएगी। तो अब ये क्या है, ये आप लोगों ने देखा होगा ना, हर कॉलोनी में एक घर होता है जहाँ पे पूरे साल दिवाली की लाइटें लगी होती हैं और क्रिसमस आती है उसमें एक स्टार लगा देते हैं। तो वो हमारी कॉलोनी में वो घर था मेरा, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है मेरे पापा को। मेरे पापा क्या है, दिवाली आती है उनके अंदर का गबरू जाग जाता है, तो वो घर में जहां जहां पॉसिबल है वहां लाइटें लगा देते हैं। और वो भी ऐसे ऐसे मतलब ऊपर चढ़ रहे हैं, स्टूल पे चढ़ रहे हैं, 2 स्टूल पे चढ़ रहे हैं, और चढ़ के एक चीज ठोक के मम्मी को देख रहे हैं। और मैडम देख रही हैं आप? मैं यार 30 साल हो गए आपकी शादी को, अब क्या इम्प्रेस कर रहे हो आप? अच्छा, इसके बाद उनका स्टार्ट होता है डब्बों की छटाई, ठीक है। एक तो होते हैं ये गत्ते वत्ते वाले डब्बे, वो तो शुरू में ही साइड हो जाते हैं। फिर होते हैं अच्छे डब्बे, ये वो डब्बे हैं स्टील व्हील के जो सालों तक फ्रिज के ऊपर पड़े होते हैं, और जिनको आप कभी भी खोलो उनके अंदर कभी भी ना तो चॉकलेट निकलेगी ना मीठा निकलेगा। उनके अंदर होते हैं सुई के धागे, बटन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और फिर उसके बाद उनका नेक्स्ट लेवल आता है जब वो कार्ड में से निकालना शुरू करते हैं गणेश जी, और वो पूरे घर में चिपका देते हैं। चलिए लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस। एक काम करते हैं ना, एक छोटा सा एक हल्का सा ब्रेक लेते हैं, एंड लेट मी वेलकम हबीब खान सर, ही इज प्रेसिडेंट ऑफ COA. Can we have him on the screen? Can we have him on the screen? Habib Khan sir. Hi everyone. Good evening. Yeah, good evening sir. You are not on screen. Can we have him on the screen? Afraid of calling you actually. कि हम कैसे call करें, and you were so casual. I just loved it actually. And Thank you. It's a pleasure being amongst all of you. yeah. So sir, thank you for attending this finale, and we need some words of wisdom from you. That's why we were troubling you. That can we? So I think you continue with Girish, and then
let him finish. Okay, then we welcome you with a Sure. song by Arjun. I'll hang out for a while. You finish your. Yeah, okay, Arjun. Then can we have a song from you to welcome sir? Yeah, sure. Okay. ठीक है. So just a second. Alright, so ये जो अगला गाना है इसका नाम है दोस्ती के पर. वो जो हमारे प्यारे प्यारे दोस्त होते हैं ना, ये उन्हीं पे है. कॉलेज के वो डेज क्या क्या मस्ती करते थे हम. Alright. गौर से सुनिएगा. सुबह से अब जो शाम हो चली है, मैं सोचता रहा दिन भर कि कैसे कटेंगे यारों बिन मेरे दिन के वो सारे पहर. सुनील सर, सॉरी टू ब्रेक इट अप. कुछ पंगा हो गया स्लाइटली गिटार के साथ. No problem. You can sing it. ऐसे ही गा दे चलेगा हमको. We love your voice. हाँ, मैं काम करता हूँ. I'll just switch off that some mistake happened. All right. चलो, I'll just switch off. चलिए ये सुनिए. इस गाने का नाम है आरज़ू. Wow. गिरीश की बात सुन ली. जब से है देखा तेरी निगाहों में, लगता है जैसे कि कोई गया हो. आए नजर अब तो कुछ भी ना तेरे सिवा. आंखों में तेरे न जाने क्या जादू है. उड़ गए होश और तेरे पे काबू. कैसी तड़प है ये आए न चैन करा. लेके जमीनों से आसमानों तक मांगी है बस दुआ. कोई जमीन मेरी तू आसमां मेरा बन जा तू मेरा खुदा. तू जैसे बारिशों में मिट्टी की खुशबू. तू मेरे दिल की अधूरी आरज़ू. कह दो जो तुम हल्के से कुछ, तो मीठी सी धुन कोई लगे. और फूल भी कई खिल से गए आवाज तेरी सुन के. हाँ वक्त के कांटे भी और धड़कने ये मेरी. हाँ देखा तुझे तो थम गई. एक जमीनों से आसमानों तक मांगी है बस दुआ. तू ही जमीन मेरी तू आसमां मेरा बन जा तू मेरा खुदा. तू जैसे बारिशों में मिट्टी की खुशबू. तू मेरे दिल की अधूरी आरज़ू. Thank you. Habib sir, we had fantastic sessions starting yesterday at 11:45. We had a small inaugural, then we have architect Kazumo, then we had a line of speakers. I shared the program with Yes. You were busy in Goa, I believe, for a session with the minister, right? And Right. we had Rajasthan IIA chairman and vice chairman as the chief guest, and we wanted you as an added flavor. But then, but since you are not there, so we thought let us not have anyone then. It's so nice of you, sir.